Hello, student. This is Vinita Singh from St. Xavier School, Nalia, and today we will discuss class 10, chapter number 15, our environment. Okay, so let's have some introduction about this chapter. We have the word environment often being used in the television, in newspapers, and by the people around us. Environment means about, okay, what is the sum total about of the external factors, external substances, living and non-living condition, living beings, and their interactions and the conditions that they surrounded with any organism, and the influence the same without becoming its part. Okay, it's mainly consist of both living and non-living component, and each of which has several subcomponents which are interlinked and interdepend on each other. And in this chapter, we shall be studying how various factors in the environment interact with each other and how we impact the environment. Okay, so our sub concept is what happens when we add our waste to the environment. So, the effect of adding waste to the environment is due to our human activities, lots of waste materials were produced which were thrown away into the environment, and these waste causes a pollution of air, water and soil. The waste material produced are of two main types. They are biodegradable waste and non biodegradable waste. Biodegradable waste are the waste which are decomposed into the harmless substance by microorganism. जो harmless substance में convert कर दिया जाता है, जिस waste को decompose कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं biodegradable waste. और ये किसके द्वारा decompose किया जाता है? Microorganism के through, like vegetable, fruit, pulses, cereals, cotton, jute, wool, wood, leather, paper, animal dung, animal bones. Okay, and the non biodegradable waste are the waste which are not decomposed by microorganism, जिनको microorganism के through क्या नहीं किया जा सकता, डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल. लाइक पॉलिथीन बैग्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास, मेटल, synthetic rubber, insecticides, pesticides, etc. Okay, our second sub concept is ecosystem. What are its component? Ecosystem क्या है और इसके components क्या है? Okay, so what is ecosystem? An ecosystem which is consist of living organism in an area along with the non-living organism or components and their interaction. Okay, एक एरिया में लिविंग कंपोनेंट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम. ओके, ये हो सकता है जैसे पॉन्ड्स का इकोसिस्टम हो गया, रिवर का इकोसिस्टम हो गया, लैंड का इकोसिस्टम हो गया, डेजर्ट्स का इकोसिस्टम हो गया. समझ रहे हो आप? तो मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है और उस एरिया में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका अपने आसपास के एनवायरनमेंट के जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी हैं तो उनके साथ जो इंटरेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम. ओके, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. देवर natural ecosystem like forest ecosystem, desert ecosystem, grassland ecosystem, mountains ecosystem, ponds, lake, river and ocean ecosystems. Okay, then next one is artificial ecosystem. Artificial ecosystem means like gardens, parks, crop field, aquarium, zoo, etc. So जो कंपोनेंट्स हम खुद बनाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया. जैसे एक्वेरियम है वो हम लोग खुद घर पे उसको ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं तो वो इकोसिस्टम हो गया. जू का अपना इकोसिस्टम हो गया. गार्डन अगर हम लोग बना रहे हैं उसमें अगर कोई भी प्लांट्स वगैरह हैं, एनिमल्स वगैरह हैं, तो उनका जो भी है तो उनका इंटरेक्शन जो होता है अपने नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ में, तो वो हमने डेवलप किया है वहाँ पे. ठीक है, उनको हमने वैसे ही कंडीशंस को प्रोवाइड किया है, तो वो हो गया हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स. दे आर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. Biotic components are the living components like plants, animals, and microorganisms, and they will consist of producer, consumer, and decomposer. Okay, biotic components क्या होते हैं? Living components होते हैं जैसे plant, animals और microorganism हो गए. और इनमें क्या होते हैं? ये थ्री टाइप के कंसिस्ट होते हैं. इसमें कौन कौन से? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर. ओके,
Producer, as per we know, the all green plants are the producers. They can produce their food by the process of photosynthesis. And the next one is consumer are the herbivores which get their food directly from the plants, carnivorous which get their food indirectly from the plants, and omnivorous which get their food directly or indirectly from the plants. Okay, they were consumers. And then last one, decomposers. Decomposers are the microorganisms which decompose the dead plants and animals, and they were decomposed complex organic substances into the simple inorganic substances in the soil, which are again used by plants. Okay. Then abiotic components. Abiotic components are the non-living components like air, water, soil, minerals, sunlight, temperature, wind, etc. Okay, these were they were our abiotic components. Third sub concepts is how do our activities affect the environment. As per we know that we are throwing away our waste in the our environment and doing many irresponsible things towards the environment, and it will directly or indirectly affect our environment also. So our major cause which will affect the environment is depletion of ozone layer in the atmosphere. Okay, ozone molecule which contains three oxygen atom, O3. Okay, and at the higher level of the atmosphere, the UV radiation which will comes from the sun, जो sun से हमें UV radiations मिल रही हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, वो क्या करती है, स्प्लिट सम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, स्प्लिट्स कर देती है फ्री ऑक्सीजन एटम्स में. ठीक है, which combines with the oxygen molecules to form the ozone. Okay, and it is a highly poisonous. Like ऑक्सीजन जितना भी हमारे एनवायरनमेंट में होता है, ये जैसे ही आएंगी तो वो क्या करेंगी, यूवी रेडिएशंस हमारी जो ऑक्सीजन है जो एनवायरनमेंट में, उसको क्या करती है, स्प्लिट कर देगी. जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, O2 यूवी रेडिएशंस के थ्रू क्या हो जाता है, O+O. ठीक है, समझ में आ गया, दोनों मॉलिक्यूल्स में उसको तोड़ दिया है इसने, स्प्लिट कर दिया है. तो यही क्या होता है, बाद में ऑक्सीजन जो है वो स्प्लिटेड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और ओजोन का फॉर्मेशन कर लेता है. तो इस तरीके से बनती है हमारी ओजोन लेयर. ठीक है, द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द हायर layer of the atmosphere protects the earth from the harmful UV radiations from the sun, and UV radiation causes skin cancer in the human beings. UV radiation से क्या होता है, स्किन कैंसर होता है ह्यूमन बींग्स में. ठीक है, और ओजोन लेयर क्या करती है, ये हमारे हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है अर्थ के, और ये हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, जो कि हमें किससे मिलती है, सन से. ठीक है, ओजोन लेयर इज बीइंग डैमेज्ड बाय द यूज ऑफ केमिकल्स. जो केमिकल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, ठीक है, जो हमारे यूज करे जाते हैं जिसमें रेफ्रिजरेटर्स में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में. तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो ओजोन लेयर है वो डैमेज हो रही है. सो द यूज ऑफ CFC इज नाउ बीइंग रिड्यूस टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर. अब ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, CFC का यूज कम करना होगा. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है. ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे है ओजोन लेयर किस तरीके से हमारे अर्थ को हमारे प्रोटेक्ट कर रही है हार्मफुल यूवी रेडिएशन से. और आप देख सकते हो ग्लोबली अगर देखा जाए तो ये जो आपको पर्पल कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा है ओजोन होल. ठीक है, समझ में आया. ओजोन होल का मतलब ये नहीं है कि उसमें पर्टिकुलरली छेद हो गया, एक लेयर होती है जिसकी जो थिकनेस होती है उतनी थिकनेस है. और अगर वो बार बार डिप्लेशंस के कारण क्या हो रहा है कि कई कई जगह से वो ओजोन लेयर जो है वो पतली हो गई, उसकी जो थिकनेस है वो कम हो गई है, उसी को हम बोल रहे हैं ओजोन होल. ऐसा नहीं है कि पूरा छेद हो गया है, आर पार सारे रेडिएशंस जा रहे, ऐसा नहीं है. लेकिन जो ओजोन लेयर की थिकनेस है वो काफ़ी जगह पे ड्यू टू द केमिकल यूजेस ऑफ केमिकल्स, एनवायरमेंट पोल्यूशंस के कारण क्या हो गया है कि वो होल्स जो है, वो जो लेयर है वो लेयर कहीं कहीं से उसकी थिकनेस कम हो गई है, जहाँ से क्या होता है, जिनको बनाया गया है ओजोन हॉल. ठीक है, समझ में आ रहा है इतना. So how we manage the garbage, what whatever whichever we produce, okay, है ना, how we managing the garbage we produce. The household waste is known as garbage, and some of the garbage is biodegradable and some are non-biodegradable.
and garbage also causes a pollution of air, water and soil, so it should be disposed properly. Some of the methods of garbage disposal are landfill, मतलब जमीन में खड्डा खोद के उसको डाल दिया जाए या उसको रिसाइकल कर लिया जाए, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मेन्योर, मेन्योर और बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मेन्योर मतलब होता है जो खाद होती है खेतों में, बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम लोग यही यूज़ करते हैं, तो गार्बेज उसमें भी यूज़ किया जा सकता है। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, कंपोस्ट बनाने के लिए जो खाद बनाते हैं ना, जो केचुआ उसमें रहते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इंसिनरेशन, इंसिनरेशन का मतलब होता है कि आग लगा दी जाती है ना, जब कूड़े को आग लगा दिया जाता है उसको डिस्पोज करने के लिए, ठीक है, उसको जला दिया जाए कूड़े को। सीवेज ट्रीटमेंट किया जाए, मतलब प्रॉपर सीवेज का जो ट्रीटमेंट होता है वो उसे दिया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे क्या किया जा सकता है, हमारे गार्बेज को क्या कर सकते हैं हम लोग प्रॉपर वे में डिस्पोज कर सकते हैं विदाउट हार्म पहुंचाए हुए हमारे एनवायरमेंट को, ठीक है। दैट्स ऑल इन योर चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट, let me know about it, and thank you so much.